ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ की ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮੈਟਲਸ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਟਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 11 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ 281। ठीक है। इसी तरह जी मैग्नीशियम ले लिए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 तो कन्फिगरेशन की होगी 282। एल्यूमीनियम के केस नेक्स्ट ही है 13 है तो 283। मेटल की खासियत है कि वो सारे एलिमेंट्स जिन्हां दे आउटरमोस्ट शेल दे विच 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंदे ना वही मेटल्स। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਜਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ। और केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में तुम पढ़ोगे इसमें थोड़ा आइडिया दे देनी है। कोई भी मेटल, कोई भी एटम दूसरे एटम में कंबाइन करता है ना स्टेबिलिटी गेन कर ले, अपने आप स्टेबलाइज कर ले। और स्टेबिलिटी किस तरह आती है जो आउटरमोस्ट शैल मतलब के शैल हो चाहे एल हो या एम शैल हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कंप्लीटली फिल्ड हो ना वाला शैल वो स्टेबल हो जाता है। मींस तकरीबन 8 शैल वाला अगर तो हाइड्रोजन हीलियम है तो के शैल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ਨਾਲ सैटिस्फाई हो जाना। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿ 1 2 ਜਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 2 3 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਐਟਮ और ए अगर 281 अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आउटरमोस्ट वाले में, अंदर वाले में नहीं, की हो जाएगा कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कदों जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो पता ना एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 11 ही। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ਇੱਥੇ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 11। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना तो वो ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइन। एक इलेक्ट्रॉन लूज होया तो एक पॉजिटिव चार्ज। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ केस ਲੈ ਲਿਆ मैग्नीशियम ਦਾ 282, अगर ਇਹਨੂੰ 2 एक्स्ट्रा है स्टेबल होने ਲਈ 8 ਕਰਨ ਲਈ 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀ 12 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन 10 ਹੋ ਗਏ तो 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ 3। ਹੁਣ ਇਹ +1 +2 +3 ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਜਨਰਲੀ ਸ਼ੋ +1 valency, +2 positive, 3 valency, monovalent, divalent, trivalent by losing 1 electron, 2 electron or 3 electrons to get stabilized। और एक ही बन जाएगा ions। तो atoms तो की बन गए ions। कैसे फॉर्म दे ions पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव ions को की बोलते हैं cat ions। पॉजिटिव चार्ज आयंस जो की बोल देंगे कैट आयंस। जो तो कोई मेटल कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उतना ही ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जितना वो लूज करेगा। n सपोज लेट इट बी 1 2 3 n ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ तो एक ही बन गया मेटल आयन और पॉजिटिवली है इसलिए कैट आयन। ये तो न्यूट्रल एटम सीगा, कोई चार्ज नहीं शो करता ना। तो एक मेटल के एटम्स की टेंडेंसी है कि टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इस टेंडेंसी को किहड़ा टर्म दिते गई है, की वर्ड दिता गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ प्रॉपर्टी की होगी केमिकली
metals are electropositive. Electropositive means they have the tendency to lose electron to get positively charged ions, cations. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ पहला केस ਅਸੀਂ पढ़ लेने हैं ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि देखो सराउंडिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ चीज़ां प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, पोल्यूटेड है तो कुछ ना कुछ एसिड वगैरह भी मिक्स हो जाते हैं। तो जनरली फर्स्ट प्रॉपर्टी ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ पढ़ लांगे, क्योंकि वन वैलेंसी है तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट हो गए। नाइट्रोजन, सोडियम पोटेशियम वगैरह सारे पॉजिटिवली वन चार्ज शो कर दे तो मतलब सारे मोनोवैलेंट हो गए। कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सारे डाइवैलेंट हो गए। आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह सारे ट्राइवैलेंट हो जाते हैं। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, that is they have the tendency to lose electrons to form positive ions। नो एटम्स ना रह के की बन गए आयंस, और केड़े टाइप के? कैट आयंस। तो पॉजिटिव आयंस की जगह से कीवर्ड यूज कर सकते हैं कैट आयंस। कैशन ना बोल देना, कई बच्चे कैशन भी बोल देते हैं। कैट आयन, ठीक है। तक हुण असी मेन प्रॉपर्टी जी असी पढ़नी है फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता ना है तो नॉन मेटल है, लेकिन असी इत्थे एज ऑक्सीजन ही पढ़ना है, नॉट एज नॉन मेटल्स। की नॉन मेटल्स नाल रिएक्शन असी सैपरेट देख लांगे। विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो जनरल फार्मूला असी यूज करते हैं बिकॉज डायटोमिक इन नेचर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 की फॉर्म से मिलता है और गैसियस फॉर्म से मिलता है। हवा तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 21% भी काफी है साडे लिए। हुण कोई भी मेटल जो रिएक्ट करता है ना तो जनरल फॉर्म च पता होना चाहिए ऑक्सीजन च। एक मेटल का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करेगा तो की बनाएगा? मेटलिक ऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड है, दो एटम्स है मिलके, दो एलिमेंट्स है मिलके कंपाउंड जो बन गया वो बाइनरी कंपाउंड बन गया और मेटालिक ऑक्साइड। एग्जांपल ले लो सोडियम, इजी लिया करो, ओके ओके बोलना जाना। सोडियम से ऑक्सीजन जो कंबाइन करेगा तो की बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। हुण फार्मूला तुसी बड़ा सोच समझ के लिखना है, ये सोच लो वैलेंसीज वगैरह सिंबल्स वैलेंसीज आएंगे तो तुसी इजीली फार्मूला लिख सकते हो, क्योंकि सोडियम ने की किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ने वो वाला गेन कर लिया तो की बन गया? सोडियम ऑक्साइड। एक किस तरह होगा ऐसे अगले टॉपिक्स पढ़ांगे। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड। इन्होंने असी बैलेंस करना है तो ए बैलेंस होगी ऑक्सीजन और ए बैलेंस होगी सोडियम। तो हुण इसी तरह जी असी देखिए सोडियम के बाद आयरन, चलो एल्यूमीनियम का केस लेने हैं। एल्यूमीनियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के नाल, इन्हें की बनाना है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमीनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो Al2O3 बन जाता है और बैलेंस कर ली, बैलेंस हो गया। तो इसी तरह जैसे देखिए जिंक रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के नाल, हीट करो, ऑक्सीजन हवा च प्रेजेंट है, हीट करो या ऑक्सीजन नाल कंबाइन हो गया तो एक ही बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है तो इस करके इस तरह बैलेंस होकर फार्मूला बन गया जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर तुसी पोटेशियम, आयरन, आयरन Fe2O3 बना देगा, इस तरह मतलब की बनता है मेटालिक ऑक्साइड, तातीय ऑक्साइड। कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन नाल कंबाइन कर दे हीट करन ते ਉਹ ਕੀ बन जाता है ऑक्साइड, उससे कम एलिमेंट का, उससे मेटल का। हाँ जी सिल्वर गोल्ड वगैरह ना वो जिन्ना मर्जी हीट कर लो ऑक्साइड के कंपाउंड नहीं बनाएंगे।
उन्होंने ऊपर की लेयर कई मैटल्स ऐसे कॉपर वगैरह जो नहीं भी रिएक्ट करते ना, लेकिन उन्होंने ऊपर एक लेयर बनी रहती है ऑक्साइड की, जिन्होंने डल अपीयरेंस मैं दसिया सी लास्ट लेक्चर भी, और डल अपीयरेंस उस ऑक्साइड की आ जाती है। अदरवाइज वो प्रॉपर नहीं होता, उस बाद वो रिएक्शन स्टॉप कर देता है, क्योंकि वो मतलब फर्दर मैटल्स को एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है, मैटल अगे कंबाइन नहीं होती ऑक्सीजन के नाल। हुण इन्हां च जिहड़ा मैटल कोई भी कंबाइन कीता मैटेलिक ऑक्साइड बनाता, हुण तुहानूं पता जे सोडियम ऑक्साइड बन गया, ऐसे सोडियम ऑक्साइड नूं असीं जे कंबाइन करदे ना वाटर दे नाल, जिहड़ा सॉलिड बनया सोडियम ऑक्साइड असीं उहनूं पानी च असीं उहनूं डिप कीता ते ओहदे च एक होर कंपाउंड बन जाएगा नवां सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर तुसीं बेसिस पढ़े सी, हाइड्रोक्साइड हुंदा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस तरह पता लगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ रेड लिटमस पाता तो ब्लू च कन्वर्ट हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ बन गया बेस, और केड़ा वाला बेस बन गया अल्कली वाला, अल्कली हो गया ये, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के बेसिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोल ਦਿੰਦੇ हैं अल्कली। ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस, याद है कुछ? तो वाटर सॉल्युबल बेसिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं अल्कली, ਤੇ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब सोडियम ऑक्साइड ਦੀ नेचर ਕੀ ਹੋਈ, पानी च डिसॉल्व किया, बेसिक उन्हें बनाती सॉल्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ नेचर ਕਿਹੜੀ हो गई बेसिक नेचर। तो metallic oxides are basic in nature, means they will convert, they will form alkali or a base when dissolved in water and turn red litmus blue। लेकिन अगर जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखिए ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बेस नाल भी रिएक्ट कर जाता है, एसिड नाल भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है? तो अगर इनको से मतलब वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, बेसिक वालियां भी शो कर देता है ते एसिडिक वालियां भी शो कर देता है, तो इसलिए इनको केड़ा बना देता है, केड़ी दी नेचर केड़ी होगी बेसिक नेचर च नहीं होगा, एक केड़ी नेचर च आएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में दोनों ही नेचर शो करता है, एसिडिक भी एंड बेसिक भी। तो ਇਹਦਾ किस तरह से एग्जांपल देने हैं, मतलब पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर show acidic as well as basic। acidic भी show करता है ते basic भी show कर देता है नेचर। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ कह सकते हैं ओवरऑल कि metal oxides are of two types, basic oxides and amphoteric oxides। क्योंकि तुहानूं पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो उन्हें फर्दर बेस नाल रिएक्ट करना ही नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर तुसी रिएक्ट करो ना ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल, तो इन्हें एक सॉल्ट बना देना है NaAlO2। ठीक है, एक तरह इस तरह एसिड और से रिएक्ट करिए एसिड के नाल, जैसा HCl के नाल रिएक्ट करिए तो ये AlCl3 भी बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा है जो देखो बेस नाल भी रिएक्ट कर रहा है, एसिड नाल भी रिएक्ट करता है, न्यू कंपाउंड दे रहा है। लेकिन अगर जो ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सिर्फ वाटर नाल भी रिएक्ट करिए ना, तो इन्हें हाइड्रोक्साइड ही देना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन ए वाले जो हाइड्रोक्साइड है ना वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोक्साइड नाल भी रिएक्ट करता है, बेस नाल भी और एसिड नाल भी, इस करके इन्हों ਅਸੀਂ ਕੀ कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ਤੇ बाकी ਜਿਹੜੇ बेसिक ऑक्साइड इन नेचर, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स किस टाइप की नेचर शो करते हैं, दे कैन बी बेसिक ऑक्साइड्स or they can be amphoteric oxides।
they can be further divided into two categories: basic oxides and amphoteric oxides. की पढ़िया सी कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, ये सारे तरह के मैटल ऑक्साइड्स है। हाँ जो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਫਰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾइड्स ਆ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो ਇਹ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। वो भी रिएक्शन जरा जबरदस्त है क्योंकि हर मेटल जरा उसकी नेचर डिफरेंट है और रिएक्टिविटी वाइज डिफरेंट है। कोई जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई स्लो रिएक्ट करता है। हम इसी तरह जैसा मेटल जैसा जिंक वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, हीट स्ट्रांगली करीदा फिर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम पोटेशियम फटाफट कर जाता है। सिल्वर कॉपर जिन्ना मर्जी तुम हीट करी जाओ वो जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते। तो इससे मुताबिक ना इन्हों का रिएक्शन जो फर्दर है रिएक्शन विद वाटर वो डिपेंड करता है। वाटर मीन्स H2O। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक भी क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल जो है डिफरेंट वेज नाल रिएक्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस पानी के नाल। हम तो मैं दस्या कि मेटल्स की नेचर जो डिफरेंट है। हम इसका मतलब डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट in different ways with water। उन्होंने केड़े तरीके हैं जी असं सब तो पहले देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हुण हाईली रिएक्टिव मेटल्स केड़े हैं, केड़े होंदे हाईली रिएक्टिव मेटल्स? जिसका सोडियम है, पोटेशियम, इस हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच है ये ठंडे पानी नाल रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट विद रूम टेम्परेचर की कर जाते हैं। कोल्ड वाटर, कोल्ड मीन्स ठंडा पानी, मतलब जो टैप फ्रिज वाला ना कर लेना एट रूम टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल ले लो सोडियम जो वाटर ना रिएक्ट करता है ना की बनाता है सोडियम बनाना है इन्होंने फिर हाइड्रोक्साइड इतने और हाइड्रोजन गैस नाल रिलीज करेंगे। ठीक है तो तुहानू पता सोडियम इतना रिएक्टिव है कि इन्हों हमेशा किहदे च रखते हैं, आम नहीं रखते होंदे सोडियम। सोडियम हमेशा कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल च रखते लैब्स विच भी। जो जार है जार च मिट्टी का तेल वो सोडियम मेटल रखा होंगे और उन्होंने पहले असं हाथ से भी नहीं रख सकते घट ज्यादा क्योंकि हाथ से भी थोड़ा बहुत गिला पसीना करके हाथ गिला है जे तो हाथ में टच कर गया उन्होंने अग लग जाती है। हुण सोडियम में अग किस लग जाती है कि पानी च पाया लगता सोडियम में अग लगी। एक्चुअली की होंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ये हीट इवॉल्व होती है निकलती है बाहर जो सोडियम नो रिएक्शन करते हैं ना रिएक्ट करते पानी के नाल तो ये हीट भी रिलीज करता है और जिस ही हीट रिलीज करता है ना हाइड्रोजन गैस जी प्रोड्यूस हो रही है उन्होंने अग लग जाती है और असी कह दें सोडियम को अग लगी। सोडियम और वाटर जिस ही रिएक्ट हुए ठंडे दोनों चीज़ा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ना जिस ही हाइड्रोजन लेकिन जी हीट प्रोड्यूस हुई है वो की करती है हाइड्रोजन गैस को अग लगा देती है। और इस करके हमेशा बड़े ड्राई हैंड्स या सुके हथों नाल इहदा रिएक्शन होता है। पानी च पाना है लेकिन ध्यान नाल पाना कि ज़्यादा ले लो कि उत्थे अग बुझ भी जाए, थोड़े जे पानी च रिएक्शन करना। और इस करके असीं इहनूं मिट्टी के तेल चलते कैरोसिन क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम नो मिट्टी के तेल च कैरोसिन ऑयल क्यों रखा जाता है क्योंकि अगर ये एटमोसफेयर के मॉइस्चर नाल रिएक्ट कर जाए तो की हो सकता है ये रिएक्शन दिखाना तुसीं फिर कि यह रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है नेचर ये हीट प्रोड्यूस जी होंगी है वो हाइड्रोजन गैस में जी प्रोड्यूस होएगी उन्होंने अग लग जाती है।
So this is why we keep sodium metal in kerosene oil. Hope clear है दोनों. इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले सकते हो पोटेशियम का. पोटेशियम ही रिएक्ट करता वाटर के नाल ते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाल की देगा हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो सोडियम पोटेशियम वैसे भी सॉफ्ट है, तुसी पहले पढ़े दी प्रॉपर्टीज सॉफ्ट इन नेचर, कैन बी कट विद नाइफ और तो भी ठंडे पानी ਨਾਲ भी रिएक्ट करते मीन हाईली रिएक्टिव है. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀशियम ਇਹ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਹੌਟ ਵਾਟਰ मतलब ਹੁਣ हाई टेम्परेचर थोड़ा ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ हॉट वाटर हॉट वाटर से कैल्शियम का एग्जांपल ले लो गर्म पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ करना है ठंडे पानी ਨਾਲ नहीं रिएक्ट करना गर्म पानी से रिएक्ट करेगा बनाएगा फिर हाइड्रोक्साइड और ना की रिलीज करते फिर हाइड्रोजन गैस कैल्शियम और वाटर जो रिएक्ट किया लेकिन केड़े वाला हॉट दे नाल मतलब टेंपरेचर और ज्यादा चाहिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ऐसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो हमें किससे पता लगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है कलरलेस है ओडरलेस है कोई स्मेल नहीं कोई कलर नहीं कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं तो हमें किससे पता लगता कि हाइड्रोजन गैस ही है तो जिससे है ना कि बर्निंग स्प्लिंटर को लेके जाओगे तो इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड पटाखे की आवाज ना बर्न कर जाती है तो शो कर देता कि हाइड्रोजन गैस है हुण इस तो बाद सेट आ जाता है मतलब इस तो भी रिएक्टिव मेटल्स तो बाद आ गया हाईली रिएक्टिव फिर ਅਸੀਂ कैटेगरी लवांगे ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਹੈ क्योंकि इससे ਤੁਸੀਂ पढ़े होगा ना तो ईजी हो जाएगा याद करना ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ क्योंकि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਦਾ ਮੇਨ रूट कॉज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट वेज ना तो थर्ड कैटेगरी आ गई साडी लेसर रिएक्टिव मेटल्स एग्जांपल आयरन ले लो एल्युमिनियम रिएक्ट विद ना इन्हें ठंडे नाल ते ना इन्हें गर्म नाल ये स्टीम नाल रिएक्ट करेगा स्टीम का फॉर्मूला पता है आइस दा स्टीम दा फॉर्मूला की होता है आइस स्टीम वाटर सब एक कोई चीज है फिजिकली डिफरेंट स्टेट्स में है केमिकली दे आर सेम H2O सो लेसर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम जैसे एग्जांपल ले लिया सी आयरन दी आयरन जो तो स्टीम दे ना रिएक्ट करता है ना पानी ना करे एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बड़ा हाई टेम्परेचर हो गया ना तो इन्हें की बनाना है फेरोफेरिक ऑक्साइड एक की चीज आ गई उसे कहोगे सिंपल ऑक्साइड्स बनते वैसे एक ही आ गया फेरोफेरिक तो मतलब दो वैलेंसी शो करता है आयरन 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव जब 2 पॉजिटिव वाला आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन नाल तो की बनेगा FeO और जब 3 वाला बनाता है तो उन्हें बना देना Fe2O3 दोनों कंबाइन हो गए तो देखो की बन गया Fe3O4 फेरोफेरिक ऑक्साइड क्लियर तो ये दोनों वैलेंसीज वाला शो करता है तो इसका नाम क्या आ गया फेरोफेरिक ऑक्साइड
ਕਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि आयरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪਲੱਸ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ 2 ਵਾਲਾ ਵੀ 3 ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, लेकिन ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ Al2O3 और हाइड्रोजन गैस। समझ आई की समझ आया कि डिफरेंट टाइप के मैटल्स डिफरेंट वेज नाल अलग अलग तरीके नाल पानी दे नाल रिएक्ट करते हैं और अलग अलग चीज़ां बनाते हैं। जेडे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है वो की करते हैं ठंडे पानी नाल रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे। वो वाले हाइड्रोक्साइड 2 टाइप से मतलब तो मेटल्स है केस है ना, जिथे मर्जी हो जाए, तो ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस हो गए। लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स है मतलब जो हाईली रिएक्टिव भी नहीं है तो घट रिएक्टिव भी नहीं है, उन्होंने रिएक्टिव मान लिए कैल्शियम मैग्नीशियम, वो हॉट वाटर ना रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम और वाटर जैसे एग्जांपल देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और फिर हाइड्रोजन गैस। लेसर रिएक्टिव मेटल्स जो आ गए आयरन एल्यूमीनियम वगैरह, वो स्टीम ना रिएक्ट करते हैं, भाप ना करते हैं रिएक्ट, और फिर उन्होंने रिएक्शन एग्जांपल्स जेडे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना वही तुसी कर लो, ज़्यादा की है करने की जरूरत फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, इन्होंने याद कर लो क्योंकि फेरोफेरिक ऑक्साइड ही बनता है, फिर FeO और Fe2O3 कंबाइन करके Fe3O4 बन जाएगा। एल्यूमीनियम ने जो स्टीम ना रिएक्ट किया था एल्यूमीनियम ऑक्साइड। हुण केस आ गया सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स ये किस तरह बिहेव करते हैं तो मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव के केस में आ जाते हैं। ये सारे मेटल्स केड़ी कैटेगरी आ गए लीस्ट रिएक्टिव, जेडे बेचारे बहुत ज्यादा टाइम लाते हैं, हीट टाइप के कह लो, रिएक्ट ही नहीं करते जल्दी देखे, और ये किसी नाल वाटर नाल रिएक्ट ही नहीं करते किसी फॉर्म से किसी भी टेंपरेचर से, इसलिए से इन्होंने की कहेंगे लीस्ट रिएक्टिव metals like silver, gold, platinum do not react with water। किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं शो करती। तो इस तरह से की देखा कि डिफरेंट वे टाइप्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इन डिफरेंट वेज। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड बना देते हैं ठंडे पानी में रिएक्ट करके, रिएक्टिव मेटल्स गर्म पानी में रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोक्साइड बन गई, लेसर रिएक्टिव मेटल्स स्टीम ना रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल सिल्वर गोल्ड तभी जितनी मर्जी ज्वेलरी पाके ना लो ठंडे गर्म पानी ना उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं होता। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय द मेटल्स। एक असी पढ़िया विद ऑक्सीजन, दूसरा असी पढ़िया विद वाटर। क्लियर होया? ऑक्सीजन रिएक्ट करते मेटल्स से की बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, अगेन 2 टाइप्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उस तो बाद असी पढ़ लिया different types of metals reacting with water in different conditions। Hope ये सब clear होएगा तुहानू। Thank you।